Hello dear students, this is our fifth lecture of matrices. In previous four lectures I explained inverse of matrix by partitioning method, then rank of matrix, also I have explained nullity of the matrix. Now in this lecture I am going to explain solution of simultaneous equation with the help of matrix method. So let us see, suppose we have given system of equations, say a11x1 plus a12x2 plus a13x3 plus up to so on a1n xn equals to b1. Then a21x1 plus a22x2 plus a2n xn is equals to b2 up to so on. Suppose m number of equation is am1x1 plus am2x2 plus up to so on amn xn is equals to bn. So here x1, x2 up to so on xn, all these are variables or unknowns, okay, and b1, b2, b3 up to so on bn, these are the constants present in right hand sides, okay, and that of a11, a12 up to so on amn, all these are coefficients, okay. So suppose we are going to find solution of this system of equations, we denote it by 1. So very first step is we write this system in matrix form. All of you familiar with matrix form, right? So matrix form is ax is equals to b. So where a is, so see, a is a11, a12 up to so on a1n, a21, a22 up to so on a2n, up to so on last row is am1, am2 up to so on amn. Here this matrix A represent coefficients of x1, x2 up to so on xn, and that's why this matrix A is called as coefficient matrix. That of capital X, this is the matrix of unknowns, and here unknowns are x1, x2 up to so on xn, okay, and that of B, this is the matrix of constants, okay, and that is nothing but b1, b2 up to so on bn. Is that clear? So what is our first step? We write given system of equation in matrix form, that is ax is equals to b, okay. Then second step is, in second step we form one matrix C. नया मैट्रिक्स हम फॉर्म करने जा रहे हैं और उस नए मैट्रिक्स को हम नॉमेनक्लेचर क्या कर रहे हैं, C. And how to form this matrix C? Let us see. So here we consider the augmented matrix. Here matrix C को हम क्या बुला रहे हैं, augmented matrix, okay. और augmented matrix C कैसे फॉर्म हो रहा है, if we combine A and B, okay, combine A and B to form augmented matrix C, okay. So क्या किया हमने फर्स्ट स्टेप में, मैट्रिक्स फॉर्म लिखा. सेकेंड स्टेप में हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी फॉर्म किया बाय कंबाइनिंग ए विथ बी. और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सी की और ए की हमें रैंक फाइंड करनी है ना. रो ऑफ सी मतलब क्या, रैंक ऑफ सी. ऑल्सो वी फाइंड रैंक ऑफ ए, बट कैसे मिलेगी हमें रैंक ऑफ सी, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया है. रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म and we just count number of non-zero rows, right? See, so here we reduce this C into upper triangular form. अब ये जो C मैट्रिक्स है उससे हम क्या काउंट करेंगे, number of non-zero rows, so that we get rank of C. but A की रैंक कैसे मिलेगी, मैट्रिक्स A का अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कैसे मिलेगा, अगर मैंने C मैट्रिक्स का जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है उसमें अगर मैंने लास्ट कॉलम हाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए, है ना. तो मैं कंबाइन जो सी मैट्रिक्स है उसी से मैं ए की रैंक भी आइडेंटिफाई करूंगी, राइट. नाउ डिपेंडिंग ऑन रैंक्स ऑफ सी एंड रैंक ऑफ ए देयर आर टू केसेस. इफ रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स सिस्टम does not have solution, है ना. सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं, इफ रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए. बट अगर सी की और ए की रैंक इक्वल होती है
In that case, system is said to be consistent. Consistent means system possess solution. ओके और अगर सिस्टम को सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो वहां पर फिर से दो केसेस आती है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या तो फिर मोर देन वन सॉल्यूशंस रहेंगे, है ना. सो लेट्स सी हियर वी सी द केसेस. So first case is if rank of C is equals to rank of A is equals to number of variables, then system have unique solution. Okay, and that if rank of C is equals to rank of A, but these ranks are less than number of variables, then system have infinite solutions. Okay, so once again I repeat, if rank of C is not equals to rank of A, then system is inconsistent, means solution does not exist. But if rank of C is equals to rank of A, then system is consistent, means there exists solution, है ना. बट अगर solution exist होता है तो वहां पर फिर से दो पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज एक तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या तो फिर मोर देन वन सॉल्यूशन, या तो फिर हम उसको बोलेंगे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेगी, है ना. तो यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा, अगर ये रैंक की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. If rank is equals to number of variables, then system have unique solution. तो देखिए यहाँ पर अपने वेरिएबल्स कौन से हैं, x1, x2 अप टू सॉन xn. सो यहाँ पर अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है. तो अगर ये रैंक इज इक्वल्स टू n, देन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन. और अगर ये रैंक्स n से लेस होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस रहेगी, देन सिस्टम हैव इनफिनिट सॉल्यूशंस. Okay, so please go through the procedure. Okay, so go through the steps, also go through these cases. Okay, now we start with some examples. Let's see the first example for finding solution of system of equation using matrix method. So see, we have given equations x plus y plus z equals to 3, then x plus 2y plus 3z equals to 4, and 2x plus 3y plus 4z equals to 7. Okay, so our first step is we write given system in matrix form, that is Ax is equals to B form. So it can be written in matrix form. क्या होता है अपना मैट्रिक्स फॉर्म, Ax इज इक्वल्स टू B, है ना. सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x, y और z के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1, 1 एंड 1. देन इन सेकंड इक्वेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z आर 1, 2, 3 एंड थर्ड रो इज 2, 3, 4. into x means matrix of variables. So कौन से वेरिएबल्स है, x, y and z, है ना. अपने पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है. ओके, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 3, 4, 7, है ना. दिस इज आवर मैट्रिक्स B, दिस इज A एंड दिस इज कैपिटल X, है ना. दिस वन इज B, where A is coefficient matrix, X is matrix of unknowns and B is constant matrix. Is that clear? Then this is our step 1. Okay, now in step 2 we form an augmented matrix C. Okay, so augmented matrix C कैसे फॉर्म होता है, अगर हमने A को और B को कंबाइन किया then we'll get matrix C. Okay, so C is equals to, तो देखिए पहले हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, A मैट्रिक्स. इट इज 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, sorry, here it is 4, 2, 3, 4. Okay, this is our matrix A, और A के साथ हम क्या करेंगे, B के टर्म्स कंबाइन करेंगे. सो क्या है अपना मैट्रिक्स B, 3, 4, 7. ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, मैट्रिक्स C को हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे एंड देन वी आइडेंटिफाई रैंक ऑफ C एंड रैंक ऑफ A.
ना आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मुझे सिर्फ ए की रैंक आइडेंटिफाई करनी है, सो ए की रैंक कैसे मिलेगी मुझे? फर्स्ट आई रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म एंड देन I count the number of non-zero rows only from this left side matrix. Okay, means I hide the last column so that we get upper triangular form of the matrix A. Okay. Now next step में क्या करना है हमें? C की रैंक के लिए क्या करेंगे हम? इस मैट्रिक्स को upper triangular form में reduce करेंगे with the help of only row transformations. So see. So first of all we make all the elements बिलो 1/1 एलिमेंट. अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1/1 एलिमेंट क्या है? 1. इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को अब हमें क्या करना है? 0 करना है. सो R2 पर हम क्या परफॉर्म करेंगे? R2 पर परफॉर्म करना है R2 minus R1 so that 1 minus 1 becomes 0. ओके. देन R3 पर हमें परफॉर्म करना है R3 माइनस, देखिए 2 minus 2 अगर मैंने किया देन विल गेट 0. यहाँ पर 2 मिलने के लिए हम क्या करेंगे? We multiply R1 by 2. Okay. So due to these operations, our matrix is equivalent to first row remain as it is, that is 1 1 1 3. Then R2 पर हमने क्या किया? R2 minus R1, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 4 minus 3 it is 1. Okay. और R3 पर परफॉर्म कर रहे हैं R3 minus 2 R1, so 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, 4 minus 2 आएगा 2 and lastly 7 minus 6 is 1. And here we draw one dotted line, or this dotted line shows dotted line की जो left side है it shows the matrix A, and if you combine A and B then we get C. Okay. देखिए अब 1 1 के नीचे के एलिमेंट 0 बन गए हैं. Now we turn towards 2 2th element and below 2 2th element here is this element 1. अब इस 1 को 0 करना है with the help of R2. तो क्या परफॉर्म करेंगे हम? R3 minus R2. Okay. So next operation is R3 changes to R3 minus R2. So our matrix C is equivalent to 1 1 1 3 0 1 2 1. हाँ, अब लास्ट रो पर देखिए क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम? R3 minus R2. 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is also 0, and this 1 minus 1 is 0. And we draw one dotted line. Okay. Now 2 2th element के नीचे के एलिमेंट 0 बन गए. अब क्या करना है हमें? 3 3th element की तरफ मुड़ना है, राइट? But below 3 3th element there is nothing. So this matrix itself represent upper triangular matrix. Okay. Now how to identify rank? For rank, in previous lecture I already told rank is nothing but number of non-zero rows in upper triangular matrix. ओके. सो अगर मुझे C की रैंक आइडेंटिफाई करनी है तो मैं क्या करूंगी? C मींस कंप्लीट मैट्रिक्स है ना. सो कंप्लीट मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे. सो फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकंड रो इज नॉन जीरो, थर्ड रो इज जीरो. सो देयर आर ओनली 2 नॉन जीरो रोज. दैट्स व्हाई रैंक ऑफ C इज इक्वल्स टू 2. नाउ टू फाइंड रैंक ऑफ A, अब हम क्या करेंगे? A की रैंक के लिए देखिए मैंने मैट्रिक्स C कैसे फॉर्म किया है? A और B को कंबाइन किया है, बट अपना B क्या है? सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है ना. तो अगर मैंने इस मैट्रिक्स का लास्ट कॉलम हाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा? दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम A, है ना. तो A के रैंक के लिए मैंने लास्ट कॉलम हाइड किया. जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उससे मैंने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट किए. सो फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो इज जीरो. So rank of A is also equals to 2. Right? Rank of A is 2. तो दोनों रैंक्स इक्वल है ना. तो यहाँ पर रैंक ऑफ C is equals to रैंक ऑफ A. अगर दोनों रैंक्स इक्वल होते हैं तो सिस्टम is said to be consistent, है ना. So system is consistent. और सिस्टम कंसिस्टेंट है मतलब क्या? सिस्टम possess
solution, right? System possess solution. और सिस्टम को सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, बट अगेन देयर आर टू केसेस. एक तो सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन रहेगी, या तो फिर सिस्टम को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगी. इट डिपेंड्स ऑन देयर रैंक्स, है ना. सो हियर रैंक ऑफ सी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2. अब हम इसको रैंक को रिलेट करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ. तो अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं? देखिए सिस्टम अपने पास वेरिएबल्स कौन से x, y and z. So we have 3 variables, right? And what is the rank? Rank is 2. Means this rank is strictly less than number of variables, है ना. तो अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स से स्ट्रिक्टली लेस होती है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? दैट मीन्स सिस्टम possess infinite solutions. Okay, so system possess इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना. अब हमें ये सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से हम अपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म की तरफ मुड़ेंगे. अब ये जो मैट्रिक्स इनिशियली हमने क्या किया था, इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा था. यहाँ पर हमें रिवर्स करना है. मैट्रिक्स को अब इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है ना. तो देखिए फर्स्ट रो से हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, है ना. तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3. देन सेकेंड रो गिव्स अस 0x प्लस 1y प्लस 2z. 0x मीन्स 0. ओके, सो वी गेट y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1. और लास्ट रो में तो हर एक एलिमेंट 0 है, सो दैट मीन्स 0, है ना. अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशंस है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है ना. नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3. तो इनमें का डिफरेंस कितना है? 1. अगर इनमें डिफरेंस 1 का होता है तो हमें क्या करना है? कोई भी एक वेरिएबल को t से असाइन करना है. ओके, और t टेक्स इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू. ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करती हूँ एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, so since here difference is 1, so we assign one of the variable by t. और मोस्ट पॉसिबली जो लास्ट इक्वेशन है, मतलब सेकेंड इक्वेशन है, उससे ही एक वेरिएबल को हमने t से असाइन करना है. या तो फिर y को t से असाइन करो, या तो फिर z को t से असाइन करो. सो हियर आई पुट z इक्वल्स टू t. ओके, सो पुट z इक्वल्स टू t. Where t takes infinitely many value. हाँ, तो अब z को अगर मैंने t से रिप्लेस किया तो इक्वेशन 2 इम्प्लाई. देखिए इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा? y प्लस 2z दैट मीन्स 2t इक्वल्स टू 1. सो दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू 1 माइनस 2t, है ना. अब y की वैल्यू हमें मिली है, z की वैल्यू मिली है. नाउ इट रिमेन टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. सो हमें क्या करना है? y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करनी है. ओके, नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाई, देखिए अब इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा x प्लस y, y मीन्स 1 माइनस 2t प्लस z मीन्स t इक्वल्स टू 3. इम्प्लाई x प्लस 1 माइनस t इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस t अगर इधर शिफ्ट हुआ तो प्लस t होगा, प्लस 1 इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 1. 3 माइनस 1 इज प्लस 2, है ना. तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? t प्लस 2. एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू t प्लस 2, y इक्वल्स टू 1 माइनस 2t एंड z इज इक्वल्स टू t. दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. In this way we apply matrix method. I hope all you understood this method. Okay, is there any confusion? Then we talk or we discuss in our Zoom or Google Meet. Okay, now we take second example. Now here I take second example in which we are going to solve this system. Okay, अब क्या करना है? सबसे पहले स्टेप, we write given system in matrix form. Okay, so it can be written in matrix form.
क्या होता है अपना मैट्रिक्स फॉर्म, AX इज इक्वल्स टू B एज, देखिए ना फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स आएंगे 1 2 1, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 3 1 माइनस 2, थर्ड इक्वेशन 4 माइनस 3 माइनस 1, एंड लास्ट इक्वेशन 2 4 2, ओके, इनटू x, x मीन्स मैट्रिक्स ऑफ अननोन, कौन से अननोन दिख रहे हैं यहाँ पर, x y z, ओके, सो दिस इज आवर x इक्वल्स टू, अब b मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, सो इट इज 2 1 3 4, है ना, दिस इज आवर ax इज इक्वल्स टू b फॉर्म। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ओके, नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम उसको डिनोट करते हैं C से, है ना, और कैसे मिलता है हमें, मैट्रिक्स A टुगेदर विथ मैट्रिक्स B, सो C इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A लिखेंगे पहले 1 2 1 3 1 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 1, देन 2 4 2, और इसको हम कंबाइन करेंगे मैट्रिक्स B के साथ, है ना, अपना मैट्रिक्स B क्या है 2 1 3 4, है ना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद अपनी अगली स्टेप क्या है, नाउ वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, दैट मींस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपना 1 1 एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, 0 करना है, ओके। सो R2 पर हम क्या परफॉर्म करेंगे, सो यहाँ पर R2 में फर्स्ट एलिमेंट है 3, है ना, अगर इस 3 को मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूंगी, R3 माइनस 3R1, है ना, सो R2 changes to R2 माइनस 3R1। वैसे अगर इस एलिमेंट को 0 करना है तो क्या करेंगे हम, R3 माइनस 4R1, है ना, R3 माइनस 4R1, और वैसे ही R4 पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R4 माइनस 2R1, right, now our matrix C is equivalent to, so first row as it is रहेगा क्योंकि हमने उस पर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, ओके, और सेकेंड रो देखो R2 माइनस 3R1, so 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 इट इज माइनस 5, देन माइनस 2 माइनस 3 आएगा माइनस 5, देन 1 माइनस 6 इज ऑल्सो माइनस 5, ओके। अब R3 की तरफ मुड़ते हैं, R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, R3 माइनस 4R1, सो 4 माइनस 4 0, देन माइनस 3 माइनस 8 आएगा माइनस 11, देन माइनस 1 माइनस 4 इट इज माइनस 5, देन 3 माइनस 8 आएगा माइनस 5, ओके। नाउ लास्ट रो पर हमें क्या परफॉर्म करना है, R4 माइनस 2R1, सो आएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0, देन 4 माइनस 4 अगेन इट इज 0, देन 2 माइनस 2 0, एंड लास्ट 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पर अपना कंप्लीट लास्ट रो क्या बन गया है, अब 0 बन गया है, ओके। तो ऑल एलिमेंट्स बिलो 1 1 एलिमेंट क्या बन गए, यहाँ पर 0 बन गए। अब क्या करना है हमें, 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, 0 करना है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने सेकेंड रो को -5 से डिवाइड किया देन इट विल बी इजियर, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगी, R2 चेंजेस टू -1/5 इंटू R2, सो अपना मैट्रिक्स C आएगा 1 2 1 2 0, देन -5 से थ्रू आउट डिवाइड किया तो ये दो बन जाएगा 1 1 1, और थर्ड रो 0 माइनस 11 माइनस 5 0 0 0 एंड 0, ओके। अब क्या करेंगे हम, इस एलिमेंट को 0 करना है इसलिए हम R3 पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। यहाँ पर अगर मुझे +11 मिलता है तो -11 + 11 क्या बन जाएगा,
0। तो यहाँ पर 11 आने के लिए हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, R3 प्लस 11 टाइम्स R2, राइट। सो मैट्रिक्स C इज इक्विवेलेंट टू 1 2 1 2 0 1 1 1, देन 0 प्लस 0 आएगा 0, माइनस 11 प्लस 11 आएगा 0, -5 प्लस 11, -5 प्लस 11 इज +6, अगेन यहाँ पर -5 प्लस 6 आएगा, सॉरी -5 प्लस 11 आएगा +6, एंड लास्ट रो तो ऑलरेडी 0 है, एज इट इज लिखना है। ओके, दिस इज आवर मैट्रिक्स सी। अब देखिए 2 2 के नीचे वाले एलिमेंट 0 बन गए। अब क्या करना है हमें, 3 3 के नीचे वाले एलिमेंट 0 करने हैं, ऑलरेडी इट इज 0। सो दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम इससे रैंक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो सी की रैंक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, कंप्लीट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे। सो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो नॉन जीरो, सेकेंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो इज ऑल्सो नॉन जीरो, बट फोर्थ रो इज 0। तो कितने नॉन जीरो रोज है अपने पास, 3 नॉन जीरो रोज है ना। तो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, ए की रैंक आइडेंटिफाई करनी है। ए की रैंक के लिए मैंने क्या बताया है, हमें क्या करना है, लास्ट कॉलम को हाइड करना है और जितना भी रिमेनिंग मैट्रिक्स है उससे नॉन जीरो रोज काउंट करने हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकेंड रो इज नॉन जीरो, थर्ड रो इज ऑल्सो नॉन जीरो, राइट। मीन्स अगेन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो 3, मतलब दोनों भी रैंक्स इक्वल है। अगर दोनों रैंक्स इक्वल है तो सिस्टम पजेस सॉल्यूशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, है ना। तो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, so system is consistent, therefore system is consistent। consistent means system possess solution, है ना। सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो हो रहा है बट यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमें ये नंबर ऑफ वेरिएबल से पता चलेगा, है ना। तो अपने पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, x y एंड z, और अपनी रैंक कितनी मिली है, रैंक इज ऑल्सो इक्वल टू 3, है ना। तो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, और अपने पास वेरिएबल्स भी कितने, 3। सो दिस रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रैंक अगर इक्वल होती है तो सिस्टम को कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं। और अगर ये रैंक स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आते हैं देन सिस्टम पोजेस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पर सिस्टम को कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने रैंक है यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देयरफॉर सिस्टम पोजेस यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम फिर से कहाँ जाएंगे, अपने मैट्रिक्स फॉर्म की तरफ जाएंगे, है ना। अब इससे हम क्या लिखेंगे, फिर से इक्वेशंस लिखेंगे। लेकिन इक्वेशंस लिखते वक्त अगर आपने ऑब्जर्व किया तो बैक सब्स्टिट्यूशन से हमें इजीली इसके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। या तो फिर पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं, तो फर्स्ट रो से हमारा इक्वेशन आएगा x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2। सेकेंड रो से हमें मिलेगा y प्लस z इक्वल टू 1, और थर्ड रो से हमें मिलेगा 6z इक्वल टू 6, है ना। और 6z इक्वल टू 6 गिव्स अस z इक्वल टू 1। और अगर मैंने z की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुटअप की तो इजीली हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू मिली वो प्रीवियस इक्वेशन में पुटअप करते जा रहे हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसे, बैक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो z की वैल्यू अब हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाई y प्लस z की वैल्यू क्या मिली, 1 इक्वल्स टू 1। सो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, है ना। और अब क्या करना है, y और z की वैल्यू फिर से प्रीवियस इक्वेशन में, मीन्स वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई
x प्लस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या मिली हमें 0, सो 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, प्लस z की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 2. सो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड हेंस अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x equals to 1, y equals to 0 and z is equals to 1. This is required solution. Okay, so in this way we apply matrix method to find solution of system of equation. Okay, so I hope आपको ये सब समझ में आया होगा. Okay, with this we stop here. In next video I will take further examples of this matrix method. Okay, so thank you very much.